मीडिया का क्या रोल समझते हैं? मीडिया का बहुत बड़ा रोल है आज के टाइम में. दिस प्लेज देयर इज अ पैरेलल वॉर व्हिच इज गोइंग ऑन, इंफॉर्मेशन वॉर. So it's a most vital and critical role what media has to play in future also. The only request uh, from my side, and this has been issued by the government of India also, an advisory has come that कोई भी ऐसी सेंसिटिव चीज़, कोई भी ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूअरशिप or just for the sake of breaking first, it should not be there. The national interests, they should be supreme and first and always first. uh, Especially anything which is related to the movement of the security forces, deployment of the security forces, actions of the security forces, एंड सो मच सो कि क्राइम के अंदर भी मैं आपको बताता हूँ, कहीं पे कोई चोरी होती है, कहीं पे कोई लड़ाई होती है, तो आर फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, नॉट ऑल, सम ऑफ देम दे रीच, दे स्टार्ट डूइंग द कवरेज. होता क्या है कि जिस मुलजिम ने ये काम किया होता है वो अपने आप को सोच रहा होता है कि मैं तो आगे पीछे हो गया, एंड ही मैनेजेस टू एस्केप. So there is till the time the scene of crime should not be disturbed. The reporting should not be there. If you want to do reporting, it has to be separate and only after the version of the concerned government authority, and in case of crime, the concerned, I mean, police officer. काफ़ी सारे केसेस हमारे ऐसे हुए कि वो लोग हमारे हाथ में आ सकते थे, just because of the reporting they managed to escape. So this is a small piece of advice to act more responsibly. आज एक श्रद्धांजलि समारोह रखा गया था जिसमें एसपी साउथ अजय शर्मा जी ने यहाँ पे ये अजय सर आज जो यहाँ पे श्रद्धांजलि समारोह रखा गया था, कैसे कैसे देखते हैं? देखें, जैसे मैंने कहा कि जिस तरीके से हमारी आर्म फोर्सेस ने इस वॉर को अंजाम दिया, और जिस तरीके से हमारे सिविलियंस, हमारी इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन एकजुट होके इस क्राइसिस के टाइम पे हम सारे इकट्ठे रहे, दिस इज़ एग्जाम्पलरी. और एज ए पुलिस ऑफिसर, एज ए एसपी साउथ, मेरा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा रोल जो इस 4 days के अंदर जो रहा, जो हमें बूस्ट करता रहा, वो सबसे ज़्यादा यहाँ के सिविलियंस का था. The kind of discipline, the kind of sport they displayed, that was exemplary. जो बॉर्डर के लोग थे, वो अपना एकदम बहादुरी से वहाँ पे खड़े रहे, और इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट्स उनको कहा भी कि आपको खतरा है, आप आगे चलें. तो वो जो जोश था, उसमें से एक मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक 80 years के एक एक्स सर्विसमैन थे, तो ही सेड आई विल नॉट गो फ्रॉम देयर. बकवाल की मैं बात कर रहा हूँ, ही सेड आई विल फाइट. तो उस तरीके की जो चीज़ें थी वो इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग थी, and it's a great victory for our country, a short and swift and precise operation which has been carried out. This is really, I mean, appreciable. At the same time, जो हमारे सिविलियन शहीद हुए, उनके परिवारों का जो उनके लिए we can pray for the departed souls and also prayers for the family members जिन्होंने अपने dear one, loved one खोए. We stand with them, and we are so proud. We are so proud of all the sacrifices which have been made by the people in uniform and civilians also. And it teaches us that how we have to stand together as a country. Everyone stood up, and मतलब मैं आपको ऐसे कहूँ कि being a part of that active grid, I can tell you कि जो जोश लोगों में था, irrespective of the caste, irrespective of the religion, irrespective of anybody, even who was from Bihar and has come to Jammu, this was amazing. And with these words,
I just want to say that India is a great nation of the great people. Jai Hind. अजय सर, जिस तरह से आपने मीडिया का रोल की बात की है यहाँ पे, जिस तरह की जम्मू कश्मीर के हालात हैं, क्या कहना चाहेंगे? मीडिया का क्या रोल समझते हैं? मीडिया का बहुत बड़ा रोल है आज के टाइम में. This plays, there is a parallel war which is going on, information war. So it's a most vital and critical role what media has to play in future also. The only request uh, from my side, and this has been issued by the government of India also, an advisory has come that कोई भी ऐसी सेंसिटिव चीज़, कोई भी ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूअरशिप, just for the sake of breaking first, it should not be there. The national interests, they should be supreme and first and always first. Especially anything which is related to the movement of the security forces, deployment of the security forces, actions of the security forces, एंड सो मच सो कि क्राइम के अंदर भी मैं आपको बताता हूँ, कहीं पे कोई चोरी होती है, कहीं पे कोई लड़ाई होती है, तो आर फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, नॉट ऑल, सम ऑफ देम, दे रीच, दे स्टार्ट डूइंग द कवरेज. होता क्या है कि जिस मुलजिम ने ये काम किया होता है वो अपने आप को सोच रहा होता है कि मैं तो आगे पीछे हो गया, एंड ही मैनेजेस टू एस्केप. सो देयर इज टिल द टाइम the scene of crime should not be disturbed, the reporting should not be there. If you want to do reporting, it has to be separate and only after the version of the concerned government authority, and in case of crime, the concerned police officer. काफ़ी सारे केसेस हमारे ऐसे हुए कि वो लोग हमारे हाथ में आ सकते थे, just because of the reporting they managed to escape. So this is a small piece of advice to act more responsibly. जैसे बठिंडी में जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, आज उनके मेन अक्यूज्ड को जो है अरेस्ट किया गया है. हाँ, डेफिनेटली वो भी अगर मीडिया कवरेज नहीं हुई होती, उसमें आप भी शामिल थे, तो शायद हमने उनको पहले उनको एप्रीहेंड कर लेना था. कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, आज नहीं पकड़ा जाएगा तो कल नहीं तो परसों, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, वो पकड़े गए हैं. और उनका आज सुबह ही हमने बाकी जो और डिटेल्स होंगी, वी विल बी डूइंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन दैट आल्सो, बिकॉज इट वाज अ सेंसेशनल केस, and even people from the legal fraternity also raise certain questions, so we'll try to answer them. And अभी उनकी रिमांड पे लिए गए, विल शेयर द थिंग्स. अजय सर, हमने तो दूसरे दिन खबर चलाई थी, जिस दिन लड़ाई झगड़ा हुआ था हमने उस दिन खबर नहीं चलाई थी. अजय सर, आरएसपुरा में कुलिया में एक चर्च में जो है आग लगाई गई, बाइबल को, और भी कुछ वहां पे ऐसा काम किया गया जो नहीं करना चाहिए था. एक व्यक्ति को पकड़ा गया है उस केस में. जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आई हैव गॉट नो आइडिया अबाउट दिस, and I think that you should ask this question from the concerned officer who is in charge, and it should not be just to highlight an issue that you just wanted to bring the another religion angle into this. Please, बात नहीं है, मेरी बात. I've got just no idea about it. जी जी, I'm sorry. थैंक यू. शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए. अजय शर्मा जी हमारे से बात कर रहे थे, एसपी साउथ हैं. और अभी यहाँ पे हम बात करें जयेश गुप्ता जी की, जिन्होंने ये श्रद्धांजलि समारोह यहाँ पे रखा था. उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनका इस पे क्या कहना है. जयेश गुप्ता जी और इनके साथी यहाँ पे आज जो प्रोग्राम रखा था, श्रद्धांजलि समारोह रखा गया था, बात करते हैं. जयेश जी, आज का जो प्रोग्राम रखा गया था, चीफ गेस्ट यहाँ पे आज जो हैं अजय शर्मा जी आए हुए थे, एसपी साउथ हैं, उनके साथ में एसएचओ छन्नी हिम्मत आए हुए थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का प्रोग्राम रखा था हमने यहाँ पर बेसिकली हमारे पहलगाम का जो हादसा हुआ था उसमें जो हमारे लोग शहीद हुए थे, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे कई सिविलियन की डेथ हुई थी, शहीद हुए थे, हमारे सोल्जर्स शहीद हुए थे, तो उनकी श्रद्धांजलि के लिए हमने यहाँ पर प्रोग्राम रखा था. तो यस, हमारे चीफ गेस्ट थे एसपी साहब और एसएचओ साहब यहाँ पर आए हुए थे, तो बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम रहा. हर किसी ने बड़े दिल से श्रद्धांजलि दी
और इस प्रोग्राम की ख़ास बात ये थी कि म्यूज़िकल प्रोग्राम था, लाइव म्यूज़िक था, जिसमें एक प्रॉपर बैंड था और हर किसी ने देशभक्ति के गीत गाए। हर किसी ने देशभक्ति के बारे में बोला और इट वाज़ वेरी वेरी गुड। और मैं आपके माध्यम से फिर से कहना चाहूँगा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया है, इसकी चर्चा हिंदुस्तान में क्या विदेशों में हो रही है और हर हिंदुस्तानी देशवासी बहुत प्राउड फील कर रहा है कि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर इतना सक्सेसफुली किया। पाकिस्तान को पहलगाम इंसिडेंट्स के बाद उनके जो आतंकवादी जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको ख़त्म किया और उसके बाद उनके 11 एयर बेसिस को तबाह कर दिया। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट। तो जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दी है। एक चीज़ यार कहना चाहूँगा कि ये जो जगह है, बैंक्वेट जो हॉल है, इसके को ऑर्गेनाइज़र वो थे और जब हमने इनको अप्रोच किया कि हम ऐसा प्रोग्राम करने वाले हैं, तो जब इस प्रोग्राम के लिए हमने ऑनर साहब को अप्रोच किया, स्टार विला के ऑनर हैं, तो हमने बताया कि ऐसा प्रोग्राम है, इसके बारे में है। तो इन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के लिए हम आपको जगह भी देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इन्होंने हमसे चार्ज नहीं किया और जो भी खाना पीना था वो इनकी तरफ से। तो वी आर वेरी वेरी प्राउड कि हमारे ऐसे हर हिंदुस्तानी ऐसा है कि जब हम ऐसे प्रोग्राम की बात करते हैं तो खुले दिल से सामने आते हैं और ऐसा इन्होंने हमारे लिए किया। हमारे लिए क्या, अपने लोगों के लिए किया। थैंक यू सो मच इसके लिए। और दूसरा जो हमारा जो बैंड था यहाँ पर, तो उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो उन्होंने भी ही डिडंट चार्ज इवन ए सिंगल पैनी। तो कहने का मतलब ये जितना भी है आपस में जो हमने कंट्रीब्यूट करके किया प्रोग्राम, और प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, बहुत ही फैंटास्टिक रहा। बहुत प्राउड फील हो रहा है इस प्रोग्राम को लेके। क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? और जो आपने आज किया है बिना पैसा लिए, आपने यहाँ पे पूरा हॉल भी और यहाँ पे कुछ रिफ्रेशमेंट का भी कुछ रखा हुआ था। सर देखिए, एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। जो भी अभी पिछले दिनों में हमने देखा जम्मू में इतनी पैनिक सिचुएशन, हमारी आर्मी ने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया है। और हमने ये रखा था, जब भैया ने मेरे से डिस्कस किया तो हमें लगा कि हमें भी कुछ जो हमारे सोल्जर मतलब शहीद हुए हैं, इसमें जो लोग यहाँ पे मरे हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हर चीज़ में पैसा ज़रूरी नहीं होता, तो ये एक सोशल कॉज था और अपने दिल से अपने ये चीज़ की। एसपी साहब भी यहाँ पे आए, उन्होंने भी यहाँ पे कुछ अपना स्टेटमेंट दिया। हाँ, एसपी सर ने भी यहाँ पर आए, काफ़ी उन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए यहाँ। उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया कि ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए यहाँ पर जम्मू में। मतलब कि जम्मू में क्या है, पूरे इंडिया में ऐसे, जिससे भी हमारे जवानों का मनोबल बढ़ता है। तो ये तो हर किसी को अपने बारे में, देश के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, क्या मैसेज है? देखिए, मेरा यही मैसेज है सबको कि देखिए, जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पे वॉर का सिस्टम रहा और पूंछ राजौरी में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, जहाँ पे हमारे एडीसी साहब भी जो हैं उनकी भी डेथ हुई और उनको भी शहीद हुए, वो भी उनका हमने यहाँ पे रखा हुआ था प्रोग्राम। और हम उनको दिल से कहते हैं कि जम्मू में ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे जो भी लोग हैं, बढ़ चढ़ के आगे आके उनको श्रद्धांजलि दें, ताकि हम उनको याद कर पाएँ हर साल। और जो उनकी कुर्बानियाँ हैं इस वॉर के दौरान, जो उनकी जानें, जिनकी परिवार की ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम याद करें और इनको हमेशा याद करते रहें। धन्यवाद। आप क्या मैसेज देना? जी, मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो हमारे संरक्षण मंच की तरफ से जयेश गुप्ता जी ने जो इनिशिएटिव लिया, जो हमारे जवान शहीद हुए और जो हमारे सिविलियन की डेथ्स हुई, तो उनके लिए एक श्रद्धांजलि का जो हमने रखा हुआ था प्रोग्राम, हमने अपने दिल से रखा प्रोग्राम। हमें बड़ी खुशी है कि हम इस पार्ट में शामिल हुए। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम हमेशा हर हिंदुस्तानी को करने चाहिए। चलिए, शुक्रिया मेरे से बातचीत करने के लिए। तो संरक्षण मंच की तरफ से आज यहाँ पे जो श्रद्धांजलि समारोह रखा गया था, आप सबकी इस पर क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।